I send you at your personal number. When will you send me? After class. Okay. Okay, beta. So all of you Miss, kindly submit your homework on time is the because homework? आपके क्वेश्चन आंसर जितने भी क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं, you have to submit all homework on मिस time. आपने जी. मिस आपने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करें क्योंकि मेरे तो कल क्वेश्चन नंबर 5 मिला था डायरेक्ट. No, beta. I have shared question number 1, 2 and 3 also one day before. आपने वो मैसेज नहीं देखा था? आपको भी दिखाता हूँ. आपने वो मैसेज नहीं देखा था अम्मा? व्हाट्सएप पे मैं सारे मैसेजेस आप लोग क्यों नहीं देखते? मिस आप ऐसा करें, आज शेयर कर दे वो, मैं उनका स्क्रीनशॉट ले लूंगा. बेटा आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप पे आप बैक पे जाके देखिए. आप व्हाट्सएप ग्रुप पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको पुराने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे. ठीक है, आप व्हाट्सएप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा ना. एंड व्हाट अबाउट किरत, हैव यू डन योर वर्क? किरत, और इतना सारा काम आया हुआ है. किरत, टीचर मैं जब एब्सेंट थी. बेटा आपने व्हाट्सएप ग्रुप चेक नहीं किया? आप लोगों को लेक्चर, क्वेश्चन आंसर, ईच एंड एवरीथिंग आई शेयर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो. अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर रही हैं तो आपको व्हाट्सएप पे भी तो काम शेयर किया जा रहा है ना. सो व्हाई डोंट यू चेक योर व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो? आप लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक क्यों नहीं करते? ओके. All of you have to submit your homework on time. We have done 5 questions. हम 5 question आंसर कर चुके हैं. ठीक है. Now we are going towards question number 6. But before going to the question number 6, we have to do our next lecture. Now take out your books and open page number 72. Page number 72 in your books. All of you have books or not? Kirat, where is your book? टीचर मेरे पास रीडिंग वाली है, मेरे पास इसकी टेक्स्ट बुक नहीं है. मेरे पास मिस इसकी वर्कबुक भी है और बुक भी है. अली अहमद, इसकी टेक्स्ट बुक होगी आपके पास, चेक कीजिए. यस. किरत, वेयर इज योर नो टेक्स्ट बुक? मिस नहीं है. वेयर इज योर बुक? मिस आई डोंट हैव. ओके, नो मिस इश्यू. आई हैव. Okay, open page number 72 in your books. All you have submitted your homework till today. जिनका जो क्वेश्चन नंबर 5 तक का तमाम काम आप मुझे आज सबमिट करवाएंगे. तमाम जो स्टूडेंट्स who didn't submit their work, they have to submit their work till today. Okay. मिस आपको 6:30 तक मैं आपको सेंड कर दूंगा Okay. सारे होमवर्क करके. Okay, now come to the topic tag. Today our topic is about changing of state. Okay, changing of states of matter. Today our topic is about changing of state of matter. आज हमारा क्या टॉपिक है? State. How can we change the state of matter? We have learned about state of matter. How many states of matter are there? We have 3 states of matter: solid, liquid and gas. Now the question arises, how can we change this state? यानी कि from solid to liquid, liquid to solid, solid to gas. How can we change the state of matter into each other? ठीक है. So we will learn this topic in this topic. Okay. Now come to the next slide. We can change the state of matter from state to another state. ठीक है, हम state of matter को change कर सकते हैं from one state to another state. Do you know how? किस तरह से आप एक state को दूसरी state में change कर सकते हैं? Can anyone tell? Yes, Ammar. Can you please tell me that how can we change the state of matter from one state to another state? Yes, Ammar. How can you change state? How many state of matter are there, Ammar? Solid, liquid, gas. Okay. Now just let me know how can you change this state into one other state? How can you change solid into liquid? With melting. Okay, good. Very good part. यही हमारा आज का टॉपिक है. ठीक है. So through heat, you can change the state of matter from one to another state. What is the question arises?
through heat you can change the state of matter. Now the question arises that what is heat? What is heat? पहले तो हमें ये पता चलना होना चाहिए कि what is heat. तो what is heat? Most of us most of us use the word heat to mean that something that feels warm. मोस्ट ऑफ अस यूज हम ज़्यादातर हम ये वर्ड हीट किस लिए यूज करते हैं, ये फील करने के लिए कि समथिंग फील्स वार्म, यानी कि हमें क्या चीज़ हो रहा है, वार्म फील होता है. बट साइंस डिफाइंस, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग हीट एज द फ्लो ऑफ एनर्जी. हीट क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी है फ्रॉम अ वार्म ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट, यानी कि गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ जाना क्या है? हीट है. ठीक है. ऑल मैटर कंटेन्स हीट एनर्जी. जितने भी मैटर हैं आपके इर्द गिर्द, हाँ जितने भी आपके मैटर, इवन यू ऑल्सो द कंटेन हीट. इवन आप भी, आपकी जब आपको व्हेन यू फील हॉट तो आपको स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होती है ना. तो सिमिलरली वी ऑल्सो कंटेन हीट एनर्जी. ठीक है. हीट एनर्जी इज द रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. तो हीट एनर्जी क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है. तो व्हाट इज हीट एनर्जी? हीट एनर्जी इज द रिजल्ट ऑफ मूवमेंट टाइनी पार्टिकल्स. जितने भी हमारी बॉडी के अंदर पार्टिकल्स है, मूव कर रहे हैं, कंटिन्यू मूव कर रहे हैं, कॉल्ड एटम. ठीक है. टाइनी पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? हम एटम कहते हैं. मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और आइंस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और लिक्विड, सॉलिड और गैस के अंदर जो भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज tiny particles and they all contain heat energy. ठीक है. So what is heat? Heat energy is the result of movement of what is heat? Heat is the form of energy which contains all the particles by atoms, molecules, even a state of matter also. ठीक है. Now come to the next one. So we can change the state of matter by increasing or decreasing temperature. हम स्टेट तो चेंज कर सकते हैं कैसे? बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीज, यानी अगर हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा दें तो इट विल बैक किसकी तरह लिक्विड में चले जाएगा. अगर हम किसी चीज़ का टेम्परेचर कम कर दें तो इट विल बैक इनटू द मेल्टिंग फ्रीजिंग स्टेट. ठीक है. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल. एग्जांपल से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ मेनी स्टेट वी आर देयर आर 4 ways. There are 4 ways that heat can change the state of matter. We have 4 ways. हमारे पास कितने ways हैं? We have 4 ways that heat can change the state of matter. Heat क्या change कर state of matter को change कर सकती है. ठीक है. Number 1 is melting. Number 2 is freezing. Number 4 is condensation. And last is evaporation or vaporization. Evaporation को हम क्या कहते हैं? Vaporization भी कहते हैं. ठीक है. So we have 4 ways by which we can change the state of matter. How many ways? How many ways? We have 4 ways through which we can change the state of matter by heat. Heat के through. Heat के through ही आप change कर सकते हैं इन चारों state को. So how can you do this? Come to the number 1. Melting. Come to the melting state. ठीक है. What will you do in melting state? The temperature at which the solid substance melts and changes into a liquid state. It's called a melting change. How? Look at the example over here. What will you do? Changing of solid into a liquid by heating. This is called melting state. How? When ice is the form of solid, okay, and water is the form of liquid. When you will give heat to a solid, यानी कि आइस को जब आप हीट अप्लाई करोगे, जब उसको जब रेफ्रिजरेटर से निकाल के बाहर रख दोगे तो इट विल स्टार्ट टू मेल्ट. यही होगा, उसको हीट मिलेगी तो इट विल स्टार्ट टू मेल्ट. तो जैसे ही वो मेल्ट हो जाएगा इट विल कन्वर्टेड बैक इनटू लिक्विड. ठीक है. तो आपने क्या देखा कि हीट नहीं, यानी कि हीट ने स्टेट को कैसे चेंज किया? सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर दिया. ठीक है. आपको एक स्टेट समझ में आ गई कि हाउ द मेल्टिंग प्रोसेस अकर व्हेन यू विल मेल्ट एनी ऑब्जेक्ट. व्हेन यू विल एनी ऑब्जेक्ट हीट, आप किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई करोगे तो इट विल चेंज बैक इनटू अ लिक्विड स्टेट. ठीक है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. ठीक है. यहाँ तो सबको पॉइंट क्लियर है. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. एवरी सॉलिड, आपके पास जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं हैज अ मेल्टिंग पॉइंट. उनका कुछ एक मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर आके वो क्या हो जाते हैं? मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. मीन्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. आप मुझे एक बात बताइए, जब यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो आपको पता है कि, अच्छा मैं सबका माइक म्यूट कर रही हूँ, अनम्यूट कर रही हूँ. जस्ट लेट मी नो, जब ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो टेम्परेचर कम होता है या ज़्यादा होता है? टीचर कम कम होता है.
टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी कि एक फिक्स पॉइंट पर आकर ऐसा होता है कि टेम्परेचर माइनस पे बिल्कुल चले जाते हैं। माइनस पे चला जाता है और ठंड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सिमिलरली लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जब आपके पास क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सर्दी होती है, गर्मी होती है। टेम्परेचर हल्का हो जाता है तब सर्दी होती है। अच्छा माइनस पर जब आते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम यही बात डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो उसका क्या है, एक मेल्टिंग और इसका एक मेल्टिंग पॉइंट है, फिजिकल एक मेल्टिंग पॉइंट है, मीन्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो आइस किस में चेंज हो जाएगी, वाटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ईच सॉलिड हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आइसक्रीम की अगर बात करें तो आइसक्रीम का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, हो सकता है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्टिंग पॉइंट जो आइसक्रीम जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए। ठीक है, और अगर हम बटर की बात करें तो बटर का हो सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो, वो हो सकता है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्टिंग पॉइंट का चेंज। सिमिलरली ईच सॉलिड हैव अ डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। हो सकता है कि मैं आप लोगों को चार्ट दूं, उस चार्ट में मैं आप लोगों के पास कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट के नाम लिख दूं और उसके बाद मैं आपसे कहूँ कि आप इन मेल्टिंग पॉइंट के नाम लिखिए कि इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा। ठीक है, सो इन फ्यूचर आई विल गिव यू अ चार्ट in which I will give you the some solid object name, and then in front of the object I will give you the name. I will give you the name of the melting point of some solid object. ठीक है, now come to the next slide. Here are the some example of the solid object which is going into the liquid state. For example, melting of ice cream. ठीक है, melting of ice cream is also the example of the solid state. So ice cream in the form of solid. When it's going to melt, is going to the liquid state. ठीक है, melting of butter. Melting of butter is also the example of solid state. Solid melting butter in a solid state, but if it going to start melt, it will change into the liquid state. ठीक है, इवन ऑल्सो द गोल्ड बार। गोल्ड होते हैं ना आपके पास, गोल्ड बार, गोल्ड बार इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। गोल्ड आपके पास क्या है, गोल्ड बार सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन जब आप इसको मेल्ट करना स्टार्ट करेंगे इट विल चेंज इट स्टेट एंड इट विल कम बैक इनटू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, सो हाउ कैन यू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? यस हम्माद, पूछिए हम्माद, आपका माइक अनम्यूट है। यस हम्माद, how can you change the state of matter? Yes everyone, how can you change the state of matter? बताइए आयशा, how can you change the state of matter? Throw Miss teacher by heating, ice, throw or heat, freezing. throw heat only. The correct answer is that through heat you can change the state of matter. ठीक है, यानी कि टीचर from solid, टीचर फ्रीजिंग से भी तो चेंज बेटा हो जाता है। फ्रीजिंग से भी हो जाएगा, मेल्टिंग से भी हो जाएगा, बॉइलिंग से भी हो जाएगा, एवोपरेशन से भी हो जाएगा। द क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन यू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? द आंसर, करेक्ट आंसर इज डेट बाय हीटिंग। ठीक है, हीटिंग। अब हीटिंग से आपके पास 4 वेज है, वी हैव 4 वेज। By the heat we can change the state of matter. How many ways we are there? 4 ways. Number 1 is melting, number 2 is freezing, number 3 is condensation, and number 4 is evaporation, and evaporation is also called vaporization. ठीक है, now come to the next one, freezing. Next state is, next way क्या है हमारे पास, freezing. This process is the opposite of melting. ये process क्या है, melting के बिल्कुल opposite है। ठीक है, this process is totally opposite of melting. मेल्टिंग में क्या होता है, आपके पास एक चीज मेल्ट होके सॉलिड से लिक्विड में आ जाती है। मेरे लिए फ्रीजिंग में क्या होगा, लिक्विड से चीज प्लेट किसमें आ खिलाओ। जाएगी, सॉलिड में आ जाएगी। ठीक है, व्हाट विल हैपन इन सॉलिड फ्रीजिंग स्टेट? What will happen in freezing state? Liquid change into solid. When liquid is frozen, जब आप किसी भी लिक्विड को फ्रोजन करोगे, यानी कि जब आप वाटर लोगे, take a 1 glass of water and put it into the refrigerator, it start to the particles stop moving. तो क्या होगा, आपके पास सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, वो इतने ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं कि वो फ्रीली मूव भी नहीं करवाते। जब आप किसी भी लिक्विड को फ्रोजन स्टेट पर लेके जाओगे तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, मूविंग करना स्टार्ट कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। एंड और क्या हो जाएंगे, जब वो फ्रीजिंग स्टेट पर जाएंगे तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम क्लोजर एंड क्लोजर।
बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे दूसरे के until the liquid become solid. तब तक इतना क्लोज हो जाएंगे कि जब तक लिक्विड क्या ना बन जाए, सॉलिड ना बन जाए. ठीक है, करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज दैट ऑल लिक्विड्स, जैसे कि हमारे पास सॉलिड का एक मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, इसी तरह से तमाम लिक्विड्स का एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है. दैट इज मेजर्ड बाय टेम्परेचर, इसका मेजर करते हैं टेम्परेचर से. व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द ग्लो इज दिस पॉइंट, अगर वो टेम्परेचर उस पॉइंट से गिर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा. ठीक है. नाउ फॉर एग्जाम्पल हियर इज अ कैंडल. ठीक है, व्हेन यू बर्न अ कैंडल, अगर आप किसी भी कैंडल को बर्न करोगे तो वैक्स स्टार्ट टू मेल्ट, वैक्स क्या हो जाएगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी. बट व्हेन द टेम्परेचर रीचेस एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जब टेम्परेचर क्या करेगा, आप देखें अगर आप कंटिन्यू कैंडल को ब्लो रखोगे, कंटिन्यू कैंडल ब्लो कर रही है तो उसकी वैक्स मेल्ट होती रहेगी और क्या होती रहेगी, वैक्स बनती रहेगी. लेकिन अगर आप इस कैंडल को बंद कर दोगे, आपने इसको फायर नहीं दिया, आपने इसको बंद कर दिया, तो क्या होगा, ये बिल्कुल क्या बन जाएगी, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी. ठीक है. 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर वैक्स क्या हो जाती है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है. तो वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वैक्स का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी, वैक्स का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वैक्स, व्हाट इज द, यस आशा बताइए. 60 डिग्री. 60 डिग्री सेंटीग्रेड. एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड वैक्स स्टार्ट टू फ्रीज. ठीक है, वैक्स क्या हो जाएगी, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. लेकिन अगर आप कंटिन्यू उस वैक्स को, अगर आप कंटिन्यू कैंडल को ब्लो रखोगे तो क्या होगा, वो कंटिन्यू जलती रहेगी, लेकिन वो साथ साथ मेल्ट भी होती रहेगी, लेकिन वो फ्रीज टोटली नहीं होगी. लेकिन जैसे आप उसको ब्लो नहीं करोगे, आप उसको बंद कर दोगे कैंडल को, तो क्या हो जाएगा, वो कंप्लीटली किस स्टेट में आ जाएगी, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी. ठीक है. सो हाउ मेनी वेज वी हैव डिस्कस्ड टुडे, how many ways we have discussed today? Everyone unmute your mics. Everyone unmute your mics. Yes, miss. Unmute your mics. हाँ, now just let me know how many ways we have discussed today. अरे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इसमें ऐसा हो सकता है कि जब मैं हाँ मैं How many ways? 2 ways. Okay, 2 ways we have discussed today. How many ways are there through which you can change the state of matter? 4 ways. We have 4 ways. Yes, Number miss, 1 is 4 ways. melting. Number 2 is freezing. Number 2 is freezing. Number 3 is condensation, and number 4 is evaporation and vaporization. How can you change the state of matter? How? State of matter. How can you change the state of matter? Yes. How can you change the state of matter? बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी बताया भी है. जैनब आप बताइए. By heating. By heating. By heating, ये बात याद रखिए आप लोग. By heating you can change the state of matter. ठीक है? Clear all of you? Yes. Now आप लोग अभी क्या करें, आप लोग एक और चीज मैं बताने जा रही हूँ. ठीक है, आपके पास एक और चीज होती है, एक होती है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज. ठीक है, अब आप लोग 5 मिनट का सिर्फ ब्रेक लीजिए, लेकिन कैमरा बंद मत कीजिएगा. ठीक है, इट्स 5:55. All of you have read the topic on page number 72. What you have learned? Unmute your mics and just let me know. I am asking question that how many ways you can, in how many ways you can change the state of matter? In how many ways? Yes, Hamad. In how many ways you can change the state of matter? Yes. 4. In how 4 ways. Okay. Now Ahmed, just let me know. Just let me know the name of the ways. आप मुझे इन वेज के नाम बताइए that we can change the state of matter. Yes, Ahmed. We have 4 ways. Okay, name the ways.
फहद आप बताइए। तो क्या है? फहद, Yes, miss. फहद नेम द वेज। Miss, can I tell? नो, फहद विल टेल। यस फहद। Miss, what? In how many ways we can change the state of matter? 4 ways. Okay, now name the ways. Number 1 is what we have Melting. melting and Zainab number Freezing. number Condensation. Aisha. Evaporation. Vaporization. Okay, evaporation नहीं, evaporation है, ठीक है। Now what will you do in the melting state? Melting state में क्या होता है? Evaporation or vaporization. In melting state what will you do? Melting state में क्या होता है? कौन बताएगा? Who will tell? Miss, please repeat the question. What happen in melting state? Yes, Aisha. टीचर जो सॉलिड होता है उसको वो लिक्विड में चेंज कर देता है। Solid changes into liquid state. Does every solid have a melting point or not? Every solid have a melting point? Yes, Hamad. Every solid have a melting point? No? Yes. No. Every solid have a melting point. Any solid have different melting point. No. No. Yes, बेटा. Every solid have a melting point. हर solid का melting point होता है, जिस point पर आकर वो क्या हो जाता है, melt हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमें जब टेम्परेचर होता है, जब हमें टेम्परेचर होता है तो जहाँ जब 90 डिग्री पर 99 डिग्री पर होते हैं तो डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको हाई फीवर नहीं है, लेकिन जब 100 अबव जाते हो तो आपको हाई टेम्परेचर जो है वो करता है, वो रिजेंबल करता है कि आपको हाई टेम्परेचर। सिमिलरली हर चीज़ का मेल्ट होने का एक पॉइंट होता है, ठीक है। तो इन विच टेम्परेचर the water start to melt, ice start to melt? Yes, कौन बताएगा? At what degree centigrade? 60 degree centigrade. No, 60 wrong. degree. No, wrong. At what degree centigrade ice start to melt? मैं ice की बात कर रही हूँ, बर्फ की बात कर रही हूँ। 0 centigrade. Yes, very good. 0 centigrade. At 0 degree centigrade ice convert into water. आइस किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। नाउ इन फ्रीजिंग स्टेट व्हाट विल यू डू? फ्रीजिंग स्टेट में क्या होता है, कौन बताएगा? अली अहमद बताइए। अली अहमद का आई थिंक नेट प्रॉब्लम कर रहा है। अहमद आप बताइए जल्दी से बेटा। इन फ्रीजिंग स्टेट में जो लिक्विड होता है टाइटली हो जाता है, फिट हो जाता है। लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड। और मुझे ये बताइए ईच लिक्विड हैव अ फ्रीजिंग पॉइंट और नॉट? क्या हर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है? ईच लिक्विड हैव अ फ्रीजिंग पॉइंट और नॉट? यस। नाउ जस्ट लेट मी नो, मैंने आप लोगों को वैक्स की एग्जांपल दी थी, कैंडल वैक्स की। तो कैंडल वैक्स कौन से पॉइंट पर आकर मेल्ट होना, सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाती है? 60 degree centigrade. वेरी गुड। 66. Very good. At 60 degree centigrade, wax start into a solid state. ठीक है? Clear all of you? यहाँ तक सबको clear है? Now come to the next one. Next one हमारा है physical और reversible change. है हमारे पास physical और reversible change. आप एक बात बताइए, एक चीज जब solid से liquid में जा सकती है, आप मुझे एक बात बताइए कि जो लिक्विड है सॉलिड से लिक्विड यानी कि आइस जो है वाटर में चेंज हो सकती है, तो वाटर आइस में वापस दोबारा आ सकता है ना? आ सकता है या नहीं आ सकता? Yes. आ सकता है, आ सकता है। कॉल्ड अ फिजिकल और रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? वो प्रोसेस जो बार बार रिपीट हो जाए, ठीक है। इन जनरल अ फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल। यूजिंग फिजिकल मीन्स क्या? फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर कैन बी रिकवर्ड अलाउइंग द टू वाटर एवापोरेट। अगर मुझे सॉल्ट को मैं डिजॉल्व कर दूं वाटर के अंदर, ठीक है, अगर मैं चाह रही हूँ कि इसको वापस मैं किस पे लेकर आ जाऊँ, सॉलिड स्टेट पे लेकर आ जाऊँ, तो मैं क्या करूँगी? मैं सारा वाटर एवापोरेट कर दूंगी। तो सारा वाटर एवापोरेट हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसमें क्या रह जाएगा? सॉल्ट रह जाएगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे, जितने भी आपके पास प्रोसेस हैं
यानी कि आपके पास जितने भी प्रोसेस हैं हीट को चेंज करने के, दे ऑल आर रिवर्सिबल प्रोसेस। वो क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब दे कैन रिवर्स इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग। एग्जाम्पल इज दैट, लुक एट द एग्जाम्पल। हमारे पास टाइम कम है बेटा। एग्जाम्पल देखिएगा, फ्रीजिंग वाटर को जब आइस में चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर रहे हैं आइस में? आप फ्रीजिंग के थ्रू, फ्रीजिंग के थ्रू आप वाटर को आइस में चेंज कर रहे हो। लेकिन अगर मुझे आइस को वाटर में वापस चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी? इसको मेल्ट करूंगी, ठीक है? तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या नहीं है? इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस और नॉट? यस, Yes. या रिवर्सिबल, ठीक है? और हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड इट फिजिकल चेंज। वी कॉल्ड इट फिजिकल चेंज, कॉल्ड इट फिजिकल चेंज। Physical change. Yeah, when we put some water in the freezer of a refrigerator, it will turn into ice. But when warm ice, it melts and change back into water. So they are called reversible change. Similarly, next example आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप लोगों ने क्या नोटिस किया? आप लोगों के पास आइसक्रीम है, आइसक्रीम चेंज हो रही है लिक्विड में थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, ठीक है? बट यू कैन चेंज द आइसक्रीम बैक इनटू द सॉलिड स्टेट बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग, ठीक है? सो व्हाट वी कॉल, यही मैं आप लोग को बताना चाह रही थी कि ऑल द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर आर रिवर्सिबल। कौन से प्रोसेस हैं ये? रिवर्सिबल प्रोसेस है। काइंडली अनम्यूट योर माइक्स, अपने अपने माइक्स अनम्यूट रखिए आप लोग। दे ऑल आर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड दे कैन चेंज, दे कैन रिवर्स देमसेल्फ, यानी कि ये प्रोसेस रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है? और इसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज भी कहते हैं। और वी आल्सो कॉल्ड इट फिजिकल चेंज, ठीक है? ओके एवरीवन, Yes. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो हमने कितने वेज पढ़े आज? हमने पढ़े आज मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, ठीक है? मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है? इसके अलावा हमने हीट के डेफिनेशन पढ़े, दैट व्हाट इज हीट? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है? हाउ मेनी वेज वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? इन 4 ways. How many ways? 4 ways. Number 1 is melting, number 2 is freezing, condensation and evaporation or vaporization. Evaporation. अच्छा, अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग अपना होमवर्क नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? और मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी होमवर्क। नाउ नोट डाउन द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों ने कर लिया है काम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन हाउ मेनी वेज वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? हाउ मेनी वेज? 4 वेज। सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे? वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इन 4 वेज, और आपने साथ में उसके नाम भी लिखने, ठीक है? नंबर 1 क्या है? मेल्टिंग। नंबर 2 क्या है? हमने सब पढ़ लिया है, ठीक है? आप उन वेज के नाम भी लिखेंगे, ठीक है? नाउ जी आप पूछिए। आपके हमें व्हाट्सएप पर शेयर कर सकती है? मैं व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर दूंगी, लेकिन आप समझ लीजिए कि आपने करना कैसे, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन हाउ मेनी वेज वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इन 4 वेज, ठीक है? नंबर 1 क्या है? आपको उसके नाम भी लिखने होंगे, साथ में आप नाम भी लिखेंगे, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। आपने मेल्टिंग और फ्रीजिंग का प्रोसेस बताना है विद एन एग्जाम्पल के साथ, ठीक है? अभी मैंने आप लोगों को मेल्टिंग और फ्रीजिंग दोनों प्रोसेस एक्सप्लेन करे हैं, और साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी बताएंगे, ठीक है? वाटर और आइस की एग्जाम्पल बताई, कैंडल डेस्क की एग्जाम्पल बताई, ठीक है? तो आपने ये दोनों क्वेश्चन मुझे सबमिट कराने हैं टिल टुमारो, ठीक है? ओके एवरीवन? और जो स्टूडेंट जिन्होंने 1 से लेके 4 तक या क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन नहीं करें, दे हैव टू सबमिट ऑल क्वेश्चन आंसर टिल टुमारो। मुझे आप तमाम कार्य कल तक सबमिट करवाएंगे, व्हाट्सएप पे मुझे शेयर करें। कल मेरे ब्लॉग नहीं होगा, बट यू हैव टू सबमिट ऑल योर वर्क टिल टुमारो, ठीक है? टाइम पे काम कीजिएगा बेटा, ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ऑलरेडी हमारा फॉल टर्म लेट स्टार्ट हुआ है, तो वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, और हमें इसी टाइम पीरियड में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है? तो जब तक आप लोग कॉपरेट नहीं करेंगे तो आई विल नॉट डू एनीथिंग। आप लोग की कॉपरेशन के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो यू हैव टू कॉपरेट विद योर टीचर्स, ठीक है क्लास? वी हैव ओनली 3 मिनट्स। अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है क्वेश्चन से रिलेटेड, सो यू कैन आस्क मी। अच्छा, आप लोगों ने पेज नंबर 72 एंड 73 की रीडिंग भी करनी है, और यू कैन टेक योर आंसर्स फ्रॉम पेज नंबर 72 एंड 73 ऑल्सो। आप लोगों को बुक से ये आंसर इजीली मिल जाएगा, ठीक है? मैं अभी सारी डिटेल्स व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से सारी डिटेल्स ले लीजिएगा, ठीक है? इसके अलावा मैं सॉफ्टवेयर पे भी शेयर करूंगी, ठीक है? ओके एवरीवन, इज देयर एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? नो वन? नो यस।
ओके नो गुड, टीचर। वेरी गुड। काइंडली सबमिट योर होमवर्क ऑन टाइम, अपना काम टाइम पे सबमिट करवाइए। देयर द गुड टाइम विथ योर क्लास। सॉरी मिस टुमारो तक सबमिट करवाना है। yes, you have to submit your homework till tomorrow. Amen, the time is over now. Beta, everyone. Allah Hafiz.